Ayodhya, the epicenter of Indian political tumult in the early 90s. A turning point for the Bharatiya Janata Party's political fortunes. But that was in the 90s. This very road leading to Ram Janmabhoomi or the RJB complex was chock-a-block with the car sevaks. Over the last 2 decades, there have been several attempts to wipe up the same sentiments, but somehow the intensity has only gone low with every attempt. 21 years later, BJP has yet again tried to play the temple card. From the bylanes of the temple town of Ayodhya, hello and welcome to this week's edition of Politics First. Amit Shah, Gujarat Chief Minister Narendra Modi's man in UP, he is in Ayodhya. Perhaps the BJP is attempting to find its genesis all over again. The streets of Ayodhya are full of BJP workers, mostly from outside Ayodhya, reminiscent of how siege had been laid in the temple town 21 years ago. हम सब मिलकर जल्दी से जल्दी यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण करें और रामलल्ला को अपने उचित स्थान पर विराजित करें. As the cavalcade left, this statement from Modi's close aide was being read as the BJP expressed back into a new political strategy. The temple agenda was back on the table. But within hours of Amit Shah's statement came the course correction, a follow-up statement from the party president that made the BJP appear defensive and double-minded. मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के फेल्योर्स बहुत सारे हैं. यदि हमारी बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट बनती है अथवा बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो हम महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, हम इस देश का डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, इन सब सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे. So what is the BJP's real agenda? Is it clean governance or highlighting UPA's misgovernance? Is it corruption or is it development which Narendra Modi so deeply propagates? Amit Shah's visit last week has added a new dimension to the party's strategy, forcing many to believe is Ram Temple the BJP's hidden election agenda for 2014. Veteran journalist Neena Vyas has been closely monitoring the BJP since its inception in the 80s. 92 and beyond, she feels temple politics has completed one full circle. It has always been on the BJP agenda ever since the 1989 Palampur resolution, before even they joined in with the Vishwa Hindu Parishad on the Ram Janmabhoomi issue. It has always been on the agenda, but they put it on the back burner when they were in alliance, calling it compulsion of coalition politics. Mohan Bhagwat and the RSS leadership is determined that the BJP not stray from the Hindutva path. And that is what Amit Shah was articulating. But as everybody knows, and even Amit Shah would be knowing, that the Ram temple issue has been completely played out in Ayodhya and is not going to yield any electoral returns. I don't think there's a single person, even in the BJP, who believes that on the Ram temple issue they can get, extra votes in Uttar Pradesh. In Lucknow, we caught up with Vinay Katiyar, a politician born out of BJP's temple agitation. He seems to caution his own party not to dilly-dally on its temple agenda. नहीं, देखिए राम मंदिर तो बनना चाहिए, लेकिन राम मंदिर कैसे बनेगा सवाल है. बातचीत के माध्यम से राम मंदिर का निर्माण हो, अदालत से, और तीसरी बात है कानून बना करके, कोई प्लानिंग करके वो ढांचा नहीं गिराया गया, अकस्मात हुआ और ऐसा हुआ कि किसी के कोई नियंत्रण में रहने की बात नहीं थी. 4-5 घंटे में तो विध्वंस हो गया. निर्माण का जो काम है ये तो जब तक शांति नहीं होगी, सद्भाव नहीं होगा, तब तक निर्माण का काम नहीं हो सकता. तो इसीलिए उसमें समय लगेगा. Absolutely they failed, and that is why their numbers, especially in UP, went down and down and down. From 55, and they steadily went down, and then in 2009 they got 10 Lok Sabha seats.
because that constituency felt completely betrayed. The BJP worker was completely downcast, and the recent enthusiasm for Modi is precisely because of this. If Amit Shah and these people are not going to talk about the Ram temple, they're talking about it not for the larger public. They're talking about it to keep their own cadre enthused. मैं नहीं समझता कि वो इस एजेंडे के बारे में कभी भी सीरियस थे और सीरियस हैं। वो एक उनका गेम प्लान था पॉलिटिकल एक हाइप को हासिल करने के लिए। वो एजेंडा कहीं ना कहीं से कुछ उनको सपोर्ट भी कर रहा था और उसका उनको फायदा भी मिला सेंटर की पावर में आने के लिए, स्टेट की पावर में आने के लिए। 21 years after Ayodhya's tryst with controversy, we decided to visit the town. While it is business as usual at the Hanuman Ghadi and Kanak Bhavan outside the Ram Janmabhoomi complex, the events of 1992 have now been converted into a compact disc. ये क्या उसी वक्त की सीडी है जब कार सेवा हुई थी और डाटा गिरा था? उसमें डाटा गिरा तो दिखाएगा सीडी में, इसका हिस्ट्री बताता है, दिखाता है, इसका इतिहास बताता है। देखिए अभी जैसे बता रहा है, बताएगा आगे ले जाकर के लाइव दिखाएगा 92 में कैसे कैसे लोग मारे गए, बाबरी मस्जिद कैसे गिराई गई। मंदिर आंदोलन कमजोर हुआ, लेकिन सीडी की बिक्री पे भी कोई असर पड़ा है? असर पड़ा है, पहले बहुत ज्यादा बिकती थी, अब थोड़ा कम बिकती। बाहर से जो आते हैं वो खरीदते हैं, ऐतिहासिक चीज जो है वो ले जाते हैं घर पे दिखाने की अयोध्या में ऐसा हुआ था। यंग पीढ़ी जो बाने के बाद पैदा वो भी ले जाते हैं, जो बुजुर्ग है वो भी ले जाते हैं, और जो बाहर से आते हैं साउथ वगैरह की तरफ से आते हैं वो भी ले जाते हैं। आपको लगता है कि बार बार जब चुनाव आता है तो मंदिर की बात की जाती है? देखिए चुनावी रोटी है, ये चुनाव जब आता है तो यहाँ पर मुद्दे उठाते हैं राम मंदिर का। हम जीतेंगे तो राम मंदिर बनाएंगे, हम जीतेंगे तो निर्माण कराएंगे। चाहे भाजपा जीते, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे सपा, चाहे विधायक, जीतने बाद कोई राम मंदिर मुद्दा नहीं उठाता। अयोध्या जैसी 90 में थी वैसी 2013 में अयोध्या में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ, जैसा पहले है ऐसा अयोध्या अभी भी है। Sheetla Singh runs an Ayodhya-based local newspaper called Janmorcha. As he recalls 1992, he says the BJP's agitation fizzled. He feels their core constituency even doubt their intentions now. 1992 के बाद जिनका ये समझते थे कि सब हम हीरो बन करके उसके और ये वो बनेंगे, तो कोई 500 लोगों की कोई सभा और आयोजन भी नहीं कर पाए हैं आज तक। राम के प्रति ये इतने जो है समर्पित हैं, तो इनकी विश्वसनीयता अगर ये होगी तभी इसका कोई लाभ उठा सकेगा। मतलब बीजेपी के लिए भी अब ये कोई कहने की बातें हैं, मतलब इट्स नॉट अ सीरियस इशू फॉर द बीजेपी ऑल्सो। जनता यही पूछती है कि जब आप सत्ता में आते हैं, जब आपको सत्ता में आने का मौका मिलता है, तब ये मुद्दा क्यों कोल्ड स्टोरेज में पहुंच जाता है कि मतलब आपकी प्रायोरिटीज में नहीं है ये। People will decide. I think Uttar Pradesh people especially will decide Ram Temple. But I know my last election tour in Uttar Pradesh, you asked anybody, and I'm talking about Hindu crowds, you asked them about the Ram Temple, they would just laugh in your face, you know. This was some years ago. And now I think it's a forgotten issue. And Vishwa Hindu Parishad, you see, they were the ones who spearheaded it, buying off land near the Ram. They set up that trust called Ram Janmabhoomi Nyas. Where do you hear of the, Ashok Singhal took it at a certain night. At one time, his press conference used to be more crowded than those of Advani in those years of the Ram Temple movement. 92 में बाबरी मॉस्क के डिमोलिशन के बाद जो इलेक्शन होता है, उसमें बीजेपी हार जाती है। आम हिंदुओं के मन में अगर ये इशू होता तो कायदे से तो उसे बीजेपी को 3/4 मेजॉरिटी देके बैठा देना था। ये एजेंडा हिंदुओं का एजेंडा नहीं था, वीएचपी का एजेंडा था, आरएसएस का एजेंडा था, बीजेपी का एजेंडा था। मोटिवेट उस समय वो लोग कर गए कि लोग आवेश में आकर के उनके साथ आए, और आज की तारीख में इस कंट्री का मेजॉरिटी सेक्शन जो है वो इस इशू के झांसे में, उनके इस कॉन्स्पिरेसी में अब नहीं आने वाला है। जो जितना संभव है उतना करने का काम किया, और अभी भी हम अगर सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाने के लिए हमका अगर आवश्यकता पड़ी तो हम कानून बनाएंगे। Politics has reinvented itself in Ayodhya, feels this 30-year-old MLA.
Pawan Tej Narayan Pandey dislodged a sitting BJP MLA in the recent UP Vidhan Sabha elections. Pandey says this speaks volumes of how BJP has failed its voters. He represents the Samajwadi Party. भगवान राम के मुद्दे को लेकर, अयोध्या के मुद्दे को लेकर उन्होंने पूरे देश में राजनीति की। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, राम प्रकाश गुप्ता जी मुख्यमंत्री बने। इतनी सरकार होने के बाद भी इन्होंने यहाँ पर मंदिर नहीं बनवाया। ये इनके मुद्दे में है ही नहीं। ये केवल धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। It's not temple agenda only. It is a Hindutva agenda. Mohan Bhagwat has said as much. Just in Meerut recently, I don't remember the exact date, but I think it was just last month in June, there was a Sangh function where he said very clearly that the only way for India to go forward is to take Hindutva forward, and Hindutva alone as an ideology can make India a great nation. That is what he said. He said changing parties and changing leaders will not do. पूरा देश बदल चुका है। जब मोदी जी मुसलमानों के भी साथ लेना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव का जो है वो करना चाहते हैं, तो सब कुछ बदल रहा है। चुनाव में ये लग रहा है कि हमारे पास जितना है उसके अलावा कहां से कैसे उसमें जोड़े, तो उसमें वो भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। नहीं, बीजेपी शांत हो गई ऐसा तो कुछ है नहीं। बीजेपी ने तो सीधे कहा है कि उसके एजेंडे में है, और बाकायदा उन्होंने प्रस्ताव अपना पास किया हुआ है कि भाई राम मंदिर निर्माण ये हमारे एजेंडे में है। लेकिन निर्माण कौन सा है कि जो उसमें बाधाएं हैं वो हम बाधाओं को साफ करेंगे। लेकिन अदालत ने कम से कम एक सर्टिफिकेट हमको दे दी कि ये राम का मंदिर है, यथार्थ को सबके सामने ला दिया है। अब आगे की प्रक्रिया है वो जितनी जल्दी हो, हम तो चाहेंगे कांग्रेस बनाना चाहे राम का मंदिर, कांग्रेस बनाए, हम उसका स्वागत करेंगे। वो इस जगह पर वो इशू कभी भी नहीं था, और अगर ये इशू आज यहाँ पर होता तो मैं और कांग्रेस यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट ना होती। इस इशू के बाद 92 ऑनवर्ड 10 ईयर्स हम लोगों ने अयोध्या नगर पालिका पर कांग्रेस का चेयरमैन रहा है। मेरे एमपी होने के पहले समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तो कायदे से तो बीजेपी के ही एमपी को होते हुए चले आना था अगर ये इशू होता। Back in New Delhi, we lined up interviews for the show with two of BJP's most visible second-rung leaders during the 92 agitation, Uma Bharti and Murli Manohar Joshi. हाँ जी, वो हमारी रिक्वेस्ट का क्या हुआ? डॉक्टर जोशी करेंगे बात? आज मुश्किल है, मीटिंग्स है, कल भी है, 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, ही इज लीविंग फॉर वाराणसी। Loud in 1992, quiet and subtle in 2013. Amongst the BJP leaders, the Ram Mandir issue has become a huge topic of debate. Whether to raise a thing of the past, is it even relevant in contemporary politics? Does it still have the fire to ignite 1,000 minds? So much is the confusion amongst the BJP leaders that two of its senior leaders, who also spearheaded the movement in 1992, chose to avoid 21 years later. आज नौजवान रोजगार चाहता है, आज नौजवान अच्छे स्कूल चाहता है, आज नौजवान शिक्षा चाहता है, आज नौजवान हाथों में काम चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस अयोध्या की धरती पर एक बार तांडव कराया था, उसकी गवाह ये अयोध्या फैजाबाद के लोग हैं। तो अयोध्या के लोग विकास अगर न चाहते होते तो समाजवादी पार्टी को इस 2012 के चुनाव में न जिताते। ये मुद्दा जितना ही उठाएंगे कांग्रेस का उतना ही नुकसान होगा। इनका वोटर जो है दूसरे को नहीं जा सकता है। कांग्रेस का वोटर भी आम तौर से बीजेपी की ओर ही जाता है। 92 और उसके बाद के चुनाव परिणामों का अगर मूल्यांकन कर लें कि जिस क्षेत्र में कांग्रेस के जितने वोट घटे हैं, ठीक उतने वोट जो हैं बीजेपी के खाते में जुड़ गए हैं। हम तो सीधा कहते हैं भाई, जो हम ये राम का मंदिर है, अदालत ने स्वीकार किया है, यहाँ पर राम का मंदिर बनना चाहिए, ये बात तो सीधी हम बोलने वाले हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अदालत ने जब मान लिया है राम की जन्मभूमि है तो उस स्थान पर राम का मंदिर बने। अब दूसरा पक्ष है तो कोशिश करेंगे कि भाई वो भी मान जाए और वहां पर राम का मंदिर बनने दे। ये जरूर है कि ये इशू नेशनल पॉलिटिक्स को इफेक्ट डाल रहा था, नेशनल सीन पर इफेक्ट डाल रहा था, नेशनल जो हमारी कम्युनल हार्मोनी है उस पर इफेक्ट डाल रहा था। और आज मैं समझता हूं कि वो जनता उन सारे चीजों को समझ चुकी है,
और मैं नहीं समझता कि अब इस इशू को कोई भी फ्लोट करना चाहे, इस इशू पर कोई भी आगे कोई गेम प्लान और स्ट्रेटजी बनाना चाहे तो उसको कोई कामयाबी मिलेगी।